Dear students, let us solve one more example here. So here what we have to do here, so f of x, a function is given here, we have to check the continuity here. यहाँ पर देखिए -1 और यहाँ +1 दिखाई दे रहा है. देखिए that means we have to check continuity at x is equal to -1 and x is equal to +1 के लिए continuity चेक करना है. So we will check continuity first for x is equal to -1. राइट. तो f ऑफ x क्या है ये वो देखना पड़ेगा. व्हाट इज f ऑफ x? x इज लेस देन और इक्वल टू -1 के लिए -2 है. सो f ऑफ -1 इज इक्वल टू ये -2 आएगा. सो दिस इंप्लाइज f एग्जिस्ट. राइट. तो ये एक हो गया. दूसरा क्या है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1. अब इसके लिए क्या है, ये देखिए -2 है. राइट, -2. सो दिस इज इक्वल टू -2 आएगा. और राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, देखिए राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1. तो देखिए x इज ग्रेटर देन -1 देखना है यहाँ पे, तो ये 2x आएगा. So this is equal to 2 into -1, this is -2. तो यहाँ पर देखिए f of -1 is equal to लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to राइट हैंड लिमिट है. ओके. सो दिस implies f is continuous at x is equal to -1 हो जाएगा. ओके. x is equal to 1 देखेंगे. f of x फंक्शन क्या है, x is less than or equal to 1, it is 2x. So f of x is equal to, means f of 1 we have to check, 2 into 1 it is 2. Okay. So f of function we can say that function exists. Right. Now left hand limit is equal to लिमिट x टेंड्स टू. तो यहाँ पे देखिए x इज लेस देन 1 है. देखिए यहाँ पे x इज लेस देन 1, तो फंक्शन इज 2x. सो दिस इज इक्वल 2 इंटू 1, इट इज 2. और राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1. व्हाट इज हियर, x इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज 2. सो 2. तो यहाँ पर भी देखिए f of 1 is equal to left hand limit is equal to right hand limit है. So this implies given function is continuous at x is equal to 1. Right. Now let us see next question. Question number 17. Find the relation between a and b. में relation क्या है, so that the function defined by is continuous at, ये continuous दिया है x is equal to 3. So let us calculate here f of 3 is equal to, f of 3 के लिए या f of x is equal to क्या आएगा, फंक्शन ax plus 1 आएगा, क्योंकि यह x is equal to 3 के लिए ये है. So f of 3 is equal to a into 3 plus 1. Right. f of 3 is equal to 3a plus 1 आएगा. राइट. इसके बाद में हमें क्या दिया है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3. So it is ax plus 1. So therefore I can say that a into 3 plus 1. So this is equal to 3a plus 1. So this is left hand limit.
Now we'll take right hand limit. Right hand limit is equal to limit x tends to 3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, bx plus 3 है, x is greater than 3 है ना. So this is equal to b into 3 plus 3. So this is equal to 3b plus 3 बोल सकते हैं हम लोग, right? Now it is given that क्या दिया है हमको, function is continuous at x is equal to 3. So therefore f of 3 is equal to left hand limit is equal to right hand limit आएगा. f of 3 क्या है हमारा, 3a plus 1 is equal to लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3a plus 1 है, और राइट हैंड लिमिट क्या है हमारा, 3b plus 3 है. तो देखिए यहाँ पे इसको इक्वेट करेंगे हम लोग, 3a plus 1 is equal to 3b plus 3 है. ओके, तो यहाँ पे we can say that 3a is equal to 3b plus 3 minus 1. So this is equal to, this implies 3a is equal to 3b plus 2 आएगा. तो what is relation here, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको 3 से, ये is equal to b plus 2 by 3 आएगा. So this is the relation between a and b. What is relation here? Relation हम लोग क्या बोल सकते हैं, yes, ऐसा बोल सकते हैं कि this is the relation between a and b, means a is greater than b by 2 by 3, we can say that. Now next question we will see, continuous at x is equal to 0, and what about x is equal to 1. तो यहाँ पे देखिए फॉर x इज इक्वल टू 0 पहले चेक करेंगे. तो देखिए f ऑफ x क्या है इसके लिए, लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट. तो कंटिन्यूटी हमें चेक करना है, दैट मीन्स हियर लैम्बडा की वैल्यू क्या होना चाहिए, राइट. सो विल चेक लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. अभी 0 के लिए चेक करना है तो लैम्बडा इंटू 0 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h. So limit h tends to 0, this is lambda into h square means what, ये आएगा h square माइनस प्लस 2h आएगा. So this is equal to, यहाँ पे lambda into 0 plus 0 आ रहा है देखिए, राइट. So this is lambda into 0 है, और राइट हैंड लिमिट क्या है, इंटू 0 प्लस h. ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेना है प्लस 1. ये क्या आएगा देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4h प्लस 1, दैट मीन्स ये 1 आ जाएगा. तो देखिए यहाँ पर ये 0 आ रहा है देखिए, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है. सो दिस इम्प्लाइज फॉर एनी वैल्यू, कोई भी लैम्बडा की वैल्यू यहाँ ले लीजिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा f is discontinuous at x is equal to 0. Now next, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 1 के लिए चेक करना है अभी. सो f ऑफ x इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. ओके, f ऑफ 1 इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू
1 minus 2. So this is equal to minus lambda आ जाएगा, right? F of 1 is equal to. Now let us see here left hand limit. Left hand limit is equal to limit, or we can take here x tends to the left hand limit. So lambda into x square minus 2x. So this is equal to limit x tends to, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम लैम्डा इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2. अगेन इट इज कमिंग माइनस 2, माइनस लैम्डा आएगा. देखिए ये क्या आएगा, लैम्डा इंटू माइनस 1 आएगा, राइट, माइनस लैम्डा. राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 4x प्लस 1. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 1. सो दैट इज इक्वल टू, वी कैन से दैट 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 5 आएगा. ओके, सो देयर फोर f of 1 is equal to लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आता है. देखिए तो यहाँ पे f of 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 5. सो लैम्डा इज इक्वल टू 5 आएगा. सो दिस implies फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5 f is continuous. Dear students, let us see one more important example here. So for what value of lambda is the function defined by f of x is equal to continuous at x is equal to 0 and what about at x is equal to 1. That means we have to check here continuity at x is equal to 0 and 1. So let us consider let, so for x is equal to 0 पहले हम लोग चेक करेंगे. तो फॉर x इज इक्वल टू 0 हमको फंक्शन देखना है कौन सा है यहाँ पे, तो ये है. सो f ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0. सो दिस इज इक्वल टू 0 आएगा. देखिए f ऑफ 0 इज इक्वल टू, क्योंकि 0 minus right here lambda into 0. Now we will check left hand limit. So left hand limit is equal to limit x tends to 0. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन है, देखिए यहाँ पे दिस इज फंक्शन है. सो लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. तो यहाँ पे देखिए put here x is equal to 0 again here, so it will be lambda into 0 square minus 2 into 0. So this is equal to lambda into 0 0 आएगा. Now right hand limit देखते हैं हम लोग. right hand limit is equal to limit x tends to 0 plus. तो यहाँ पर देखिए x is greater than 0 के लिए ये फंक्शन आएगा. So that is 4x plus 1 आएगा यहाँ पे. So you can put here 4 into 0 plus 1. This is equal to 0 plus 1, ये 1 आएगा. तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit. So this implies f is discontinuous बोल सकते हैं. Discontinuous at x is equal to 0 for all values of lambda. For all lambda we can say that. Now let us x is equal to 1. तो यहाँ पर हमको देखना है कि f of x कौन सा फंक्शन है x is equal to 1 के लिए. So here if x is greater than 0, that means for x is greater than 0 means for x is equal to 1, this is a function 4x plus 1. 4x plus 1. So I can write f of 1 is equal to what? 4 into 1 plus 1.
So f of 1 is equal to, this is 5 आएगा. Now we will calculate here left hand limit. So limit extends to 1. तो ये देखिए x is greater than 0 और x is equal to 1 ये है. So लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी ये 4x plus 1 आएगा. This is equal to 4 into 1 plus 1, that is equal to 5 आएगा. राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, सो यही आएगा राइट हैंड लिमिट के लिए 4x plus 1. So 4 into 1 plus 1, this is equal to 5. Now see here f of 1 is equal to left hand limit is equal to right hand limit. So this implies f is continuous बोलना है, f is continuous at x is equal to 1 for all lambda, for all values of lambda means which are belonging to R, you can say that, right? So this is हमेशा ध्यान रखिए. देखिए यहाँ पर जब हम लोग कोई इंटीजर लेते हैं f of 3 is equal to 3 आएगा. इसका जब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, देखिए सपोज h मीन्स 3 plus h अगर लेंगे हम लोग, राइट, 3 plus h, तो h is a very small number which is greater than 0 है. देखिए तो that means 3 plus h means 3.1, तो this is 3 आएगा. तो this is right hand limit. So what I can generalize here कि ये plus h is equal to ये आएगा. देखिए राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मीन्स ये माइनस एच, ये माइनस एच अगर करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 3 माइनस एच करेंगे तो फॉर एग्जांपल एच इज इक्वल टू 0.1, देखिए 3 माइनस 0.1, सो व्हाट विल बी दिस हियर, इसका, सो दिस इज 2.9 आएगा और इसका 2 आएगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑलवेज इक्वल टू ये माइनस 1 आएगा. ये 3 प्लस एच है तो 2 आ गया, दैट मीन्स ये माइनस 1. हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, देखिए निगेटिव नंबर भी लेंगे तो वही आएगा. देखिए जैसे मैं सेम एग्जांपल में बता रहा हूँ, -3 के लिए ये -3 आएगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -3 इज -3. और यहाँ पे समझो -3 प्लस एच कर रहा हूँ मैं, -3 प्लस एच, तो ये क्या आएगा, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखिए लेफ्ट है जब ये ना, सो आई कैन राइट हियर -3 प्लस 0.1. ओके, सो व्हाट इज दिस हियर, दिस इज इक्वल टू -2.9 आएगा. The greatest integer less than or equal to -2.9 is -3. That means जब भी हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं, whether this number is greater than 0 और लेस देन 0, वही नंबर आएगा राइट हैंड लिमिट के लिए, ध्यान में रखिए. और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये आएगा. जैसे फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -3 minus 0.1. ओके, सो दिस इज इक्वल टू -3.1 आएगा. और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -3.1 इज -4. -3 है तो एक माइनस उससे बढ़ जाएगा. तो ध्यान में रखिए बच्चों कि राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लेते हैं तो वही इंटीजर आता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो उसमें से एक माइनस होता है. So let us solve this here. Show that the function defined by is discontinuous at all integral points. All integral points का मतलब होता है सभी integers के लिए, इसका मतलब हो जाता है. So let us here let a is belonging to z1. A is any integer, we can say that. So g of x is equal to x minus ax. So what will be this here, a minus a. So this is equal to
ये माइनस ये 0 है, बराबर जी ऑफ एक्स. नाउ विल टेक लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ये माइनस एच लेते हैं हम लोग. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स माइनस. देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट है. सो एफ ऑफ एम लिमिट एच टेंड्स टू 0. तो यहाँ पे एक्स है, तो ये क्या आएगा, देखो ये माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए माइनस एच है. तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि ये माइनस एच है, तो मैंने अभी अभी बताया कि कोई भी इंटीजर का लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो वो -1 आता है. सो ए -1 आएगा. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये माइनस एच माइनस ए प्लस 1 आएगा. सो दिस विल गेट कैंसल्ड, right? So put here h is equal to 0. So minus 0 तो होता नहीं, 0 plus 1, this is equal to 1 आएगा, right? So let us calculate here, means हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया. we will calculate राइट हैंड लिमिट now. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया हमारा, 1 आया. now we will calculate राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट is equal to लिमिट h tends to 0 f of a plus h. So this is equal to लिमिट h tends to 0. यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे, जहाँ x है वहाँ a प्लस एच माइनस a प्लस एच, बराबर. सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे ये प्लस एच. तो देखिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये आता है राइट हैंड लिमिट के लिए, अभी मैंने बताया आपको. सो दिस विल गेट कैंसल्ड. सो पुट एच इज इक्वल टू 0 हियर, तो ये 0 आएगा. सो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 है और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 है. तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस implies g of x is equal to x minus greatest integer function x is discontinuous at all integral points. So this is one of the important questions here. Okay फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो, आवाज आ रही है? ओके, नो प्रॉब्लम ना, स्क्रीन वगैरह. ओके ओके. चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग कुछ कंटिन्यूटी के फिर एक बार क्वेश्चंस देखने वाले हैं. देखिए, कंटिन्यूटी का फिर से मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ. तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर समझो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, तो कंटिन्यूअस ये इज ग्रेटर देन मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन ए का मतलब क्या होता है. देखिए यहाँ जब हम लोग चेक करते हैं तो ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज ग्रेटर देन ए, इसका मतलब होता है इस साइड में कौन सा भी पॉइंट लेंगे तो हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन देखेंगे, राइट. और उसके बाद में एक्स इज लेस देन ए का मतलब जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, तो इस साइड में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो सभी पॉइंट पर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसी मीनिंग होती है. और उसके बाद में एफ ऑफ ये निकालते हैं. देखिए हम लोग एफ ऑफ ये
बोले तो यहाँ पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। इसका मतलब होता है कि इधर भी कंटिन्यूअस है, इधर भी कंटिन्यूअस है, और बीच में ये जो पॉइंट है यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है। कभी कभी क्या हो रहा है देखिए कि ये सेम आ रहा है, LHL इज इक्वल टू RHL आ रहा है, लेकिन एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ये आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इस साइड में कंटिन्यूअस है, इस साइड में कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पर डॉट आ रहा है, इसका मतलब हो जाता है राइट। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू LHL अगर आता है तो फंक्शन का मतलब होता है ये पॉइंट को पकड़ के इस साइड में कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई भी पॉइंट लेंगे तो। सिमिलरली एफ ऑफ ए इज इक्वल टू RHL है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फंक्शन जो है यहाँ से ए पॉइंट से इधर कंटिन्यूअस है, इस साइड में कंटिन्यूअस है, और पूरे पॉइंट में यहाँ से इस साइड में और इस साइड में उस पॉइंट में कंटिन्यूअस का मतलब होता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL होता है। So this is meaning of find all points of discontinuity of f। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के हमें पॉइंट्स चेक करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये है, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए f ऑफ ये निकाल, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये 0 जो है ना वहाँ पे चेक करना है। तो f ऑफ 0, क्योंकि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये फंक्शन है। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आएगा। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि e इज इक्वल टू का साइन ये है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे 0 के लिए, f ऑफ 0 इज इक्वल टू x के बदले में मैंने 0 रखा है प्लस 1, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 लेते हैं हम लोग, f ऑफ 0 माइनस h, बराबर है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन जो हमारा है ये साइन, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो साइन ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h आएगा, राइट। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो साइन ऑफ 0 माइनस h मीन्स माइनस h हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन h अपॉन माइनस h, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, 11th स्टैंडर्ड में देखा है कि लिमिट we have seen this limit x tends to 0 sin x upon x, this is equal to 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 आता है। अभी we will check राइट हैंड लिमिट here, राइट हैंड लिमिट लेते हैं हम लोग। देखिए RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, बराबर है, h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h लेना पड़ेगा, f ऑफ 0 प्लस h। तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये है, देखिए फंक्शन हमारा, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x के बदले में 0 प्लस h रखेंगे और प्लस 1, यहाँ रखेंगे h इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। तो RHL इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर f ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL आ, और हमको क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x belonging to R। ओके, चलिए
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्क्रीन क्लियर दिख रहा है कि बच्चों, क्या थोड़ा ब्लर हो रहा है? स्क्रीन क्लियर है? ओके चलो, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए फिर एक बार यहाँ पर डिटरमाइन वेदर दिस इज कंटिन्यूअस है या नहीं चेक करना है। यहाँ पर फिर से देखिए, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि सपोज यहाँ पर ये है, एक x इधर से ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, यहाँ 0 है तो x इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा नहीं। तो इस साइड में x इज लेस देन 0, इट इज ग्रेटर देन 0 बट इट इज नॉट इक्वल टू 0, उसका मीनिंग होता है। So let us check here, f of x is equal to, हम लोग x is equal to 0 के लिए चेक कर रहे हैं, तो f of x is equal to 0 है, देखिए यहाँ, so therefore f of 0 is equal to 0 ये आएगा, right? Now we will check left hand limit, and left hand limit is equal to limit h tends to 0 is 0 plus h, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 0 माइनस h लेना पड़ेगा हमको, राइट? तो देखो यहाँ पर ये देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h, ऐसा कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन h, राइट? अभी देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, देखिए x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स गिवन फंक्शन इज sin x 0 इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन ऐसा बोलेंगे ना, ये लेस देन x, ये 0, राइट? x इज नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, ये दोनों के बीच में है, देखिए ये साइन, ये जो फंक्शन है देखिए ये है, x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग दोनों साइड से अगर इसको एक्स स्क्वायर से, आई कैन राइट 1 अपॉन एक्स नॉट एक्स, ये पूरा फंक्शन है एक्स, राइट? तो इसका मतलब क्या है, देखो 0 और इसकी वैल्यू जो है, देखिए इसके हमेशा 0 वैल्यू आएगी, बराबर है? 0 और 0 के बीच में का मतलब क्या है, 0 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, या फिर मैं और दूसरी बात बता रहा हूँ, देखिए इफ आई पुट हियर 0, राइट, h इज इक्वल टू 0 अगर मैं रखता हूँ, तो यहाँ पे लेट एनी अदर फंक्शन कम, डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इफ वी मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 0 आएगा, बराबर है? सिमिलरली राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट इज टेंड्स टू 0, एफ ऑफ आएगा, देखिए एफ ऑफ 0 प्लस h लेना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x 0 प्लस h होल स्क्वायर मीन्स h स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे साइन ऑफ 1 अपॉन h आएगा। तो अगेन यहाँ पर इसको अगर हम h से रखेंगे 0 तो 0 आएगा, राइट? तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL है, so this implies f is continuous for all x belonging to R, क्योंकि यहाँ पे देखिए x is not equal to 0, x is equal to 0, और f of x जब हम लोग सोचते हैं उसका मतलब है रियल वैल्यूड फंक्शन रहता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, आई एम नॉट टेकिंग दिस क्वेश्चन नाउ, you can take, so let us see here,
question number 26. So find the values of k so that the function is continuous. Continuous दिया है at indicated point. Function is already continuous ऐसा दिया है. इसका मतलब क्या दिया है? f of a is equal to LHL is equal to RHL. This is given. Continuous at x is equal to pi by 2. तो f of pi by 2 यहाँ पे लेना पड़ेगा. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए यही है. तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 pi by 2 minus h. ओके, तो पाई बाय 2 के लिए क्या पूछे? देखिए x इज इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए 3 फंक्शन है. दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 तो k इंटू cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h. So this is equal to what? Here, this is equal to limit h tends to 0 k into cos pi by 2 minus h means sin h हो जाएगा. हमको मालूम है cos pi by 2 minus theta is equal to क्या होता है? sin theta होता है. ओके, अपॉन पाई माइनस, ये देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस 2 जाएगा. बराबर है. तो ओके, लिमिट h tends to 0 k sin h upon pi minus pi plus 2h आएगा. राइट. सो 3 is equal to k. देखिए ये k कांस्टेंट है, इधर ले सकते हैं, इस पीरियड कैंसल है, और फिर ये 2 भी इधर मैं ले सकता हूँ. लिमिट h टेंड्स टू 0 sin of h upon h आएगा. So this is 3 is equal to k by 2 into 1 आएगा. k is equal to 6 आएगा. देखिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है. इट इज ऑलरेडी गिवन दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस बोलते. तो f ऑफ a इज इक्वल टू LHL लेके a की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी वैसा ही देखिए गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 दिया है. तो देखिए यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? देखिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू ये f of x is equal to f of ये इसकी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी है. तो जहां पर देखिए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, वहां पर हम लोग क्या करना है कि फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x क्या है इसके लिए? देखिए f of x, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए अलग अलग दिया है. सो विल कैलकुलेट हियर लेफ्ट हैंड लिमिट आल्सो. f of 2 minus h. ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या है? देखिए k इंटू 2 minus h होल स्क्वायर. so this is equal to, यहाँ h के बदले में 0 रखो तो k इंटू 2 minus 0 होल स्क्वायर. so this is 4k आएगा. बराबर है. और f ऑफ ये इज इक्वल टू क्या है? f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू k इंटू 2 स्क्वायर, तो ये 4 क्या आ रहा है.
बराबर है। तो लेट अस टेक नाउ राइट हैंड लिमिट। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए को लेके हम लोग इसको क्वेश्चन को के की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो राइट हैंड लिमिट लेते हैं उसके लिए। आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच। So this is equal to limit h tends to 0. राइट हैंड लिमिट के लिए 3 है देखिए, so we'll write here only 3, तो ये 3 आएगा। तो f of 2 is equal to RHL लेके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4k is equal to 3, this implies k is equal to 3/12। यहाँ पर भी देखिए f of x is equal to kx plus 1 है, राइट। So f of y is equal to k y plus 1 आएगा। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ y प्लस एच लेते हैं, राइट। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ये cos y प्लस एच आएगा। ये cos के बदले में x के बदले में y प्लस एच। Cos of pi plus theta means what? Minus cos pi आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, बराबर है pi plus theta। So put here यहाँ पे ये आएगा, ये आएगा माइनस cos 0, cos 0 is 1, ये माइनस 1 आएगा। So we can f of pi is equal to RHL. So f of pi is what? K pi plus 1, that is equal to minus 1, k pi is equal to minus 1 minus 1, pi is equal to minus 12.5 minus, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 के लिए f of x इज इक्वल टू kx प्लस 1 लेंगे। f of 5 इज इक्वल टू k इंटू 5 प्लस 1, f of 5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 5 plus h लेंगे। This is equal to 3 in bracket 5 plus h minus 5, so 15 plus 3h minus 5, this is equal to 10 plus 3h. So f is continuous at x is equal to 5. So this implies f of 5 is equal to RHL. So f of 5 कितना है हमारा, 5k plus 1 है, so 10 plus 3k. So this is equal to 5k minus 3k is equal to 10 minus 1. So this is equal to 2k is equal to 9, k is equal to 9 upon. चलिए यहाँ पर find the values of a and b such that the function is defined
ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ऐसा दिया है। तो यहाँ पर देखिए तो x is so we'll take here x is equal to 2 के लिए चेक करते हैं हम लोग ना। तो यहाँ पर क्या है देखिए f of 2 is equal to 5 है बराबर। f of 2 is equal to 5 है और यहाँ पर इसका राइट हैंड लिमिट लेते हैं आर एच है। तो ये देखिए 2 इज लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन 2 लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा इसका देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच आएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 राइट हैंड लिमिट के लिए ए इंटू 2 प्लस एच प्लस बी आएगा। सो दिस इज इक्वल टू एच के बदले में 0 रखिए ए इन ब्रैकेट 2 प्लस 0 प्लस बी ये आएगा प्लस जाएगा राइट हैंड। तो राइट हैंड लिमिट तो यहाँ पे एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू आर एच दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी आएगा बराबर है। दिस इज इक्वेशन 1। अभी 10 के लिए ना एक्स इज इक्वल टू 10 लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 10 x इज इक्वल टू 10 लेने के बाद में देखो f ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या है देखिए f ऑफ 10 के लिए क्या है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 है। तो यहाँ पर मैं 21 ले सकता हूँ। अभी देखिए राइट हैंड लिमिट लेंगे इसका तो 21 ही आएगा एक बोले तो 10 के लिए राइट इसलिए x इज लेस देन 10 लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लेंगे। so LHL is equal to limit h tends to 0 of 10 minus h लिमिट h tends to 0 तो यहाँ पे हम लोगों को ये इंटू 10 माइनस h प्लस b दिस इज इक्वल टू ये इंटू 10 माइनस 0 प्लस b ये आएगा 10 प्लस b और एल एच एल इज इक्वल टू क्या है हमारा एफ ऑफ 10 भी है दिस इज इक्वल टू 20 राइट। तो इक्वेशन हमारा है 2a प्लस बी और 10a प्लस। तो यहाँ पे सॉल्व दीज टू इक्वेशंस ये दो इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हमारा क्वेश्चन देख 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। यहाँ पर सॉल्व करेंगे माइनस 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 इस b भी गेट कैंसिल यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा माइनस 60। so this implies a is equal to minus 16 upon minus 8 to आएगा a is equal to so put a is equal to 2 in equation number 1 तो ये आएगा देखिए 2a plus b is equal to 5 so 2 into 2 plus b is equal to 5 so this implies b is equal to 5 minus 4 b is equal to right. So now let us see next question.
यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोगों ने थियरम देखा। व्हाट इज दैट थियरम? अगर समझो फंक्शन कंटिन्यूअस है, दो फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस है, if f and g are continuous function, then f of g is continuous. ठीक है? If f is continuous, g is continuous, then f of g is also continuous. So this is theorem C. तो इस थियरम को यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर f of x is equal to cos of x square है। देखिए यहाँ पर लेट g of x is equal to cos x and h of x is equal to x square, right? तो GOH is equal to cos of x square हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है ना g of h of x। हम लोग दो चेक करेंगे, देखिए g of x फंक्शन पहले कंटिन्यूअस है या नहीं है। g of x is equal to cos of x, right? So let this k is belonging to R, क्योंकि इसका डोमेन मालूम है हमको। देखिए व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? दिस इज R है, रियल नंबर है। So let k is belonging to R, तो g of k is equal to क्या आएगा? cos k आएगा, right? डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू k लेंगे हम, दिस इज cos x, तो ये आएगा cos k आएगा। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? g of k is equal to लिमिट x टेंड्स टू k cos x आ गया। तो हमारी डेफिनेशन कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन है कि लिमिट मीन्स f of a is equal to लिमिट x टेंड्स टू a, f of x आया तो कंटिन्यूअस है, राइट? सो दिस इज इक्वल टू ये लिखा है। दिस इंप्लाइज g is continuous at k belonging to R। g फंक्शन मीन्स cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ओके, राइट? हमारा दूसरा फंक्शन क्या है? देखिए h of x is equal to x square, बराबर है। सो लेट अस कैलकुलेट हियर अगेन, k is belonging to R बोलेंगे। इसका डोमेन क्या है? R है। तो क्योंकि पॉलिनोमियल हो, h of k is equal to k square आएगा, right? Therefore now we'll calculate limit x tends to k, f of x is equal to, this is limit x tends to k x square। So limit ये क्या, put k is equal to k there, k square। So यहाँ पर h of k is equal to limit x tends to k f of x। This implies h function h of x is equal to x square is continuous at all k belonging to, तो g of x and h of x are continuous, बराबर है, are continuous। This implies GOH, that is equal to cos of x square is continuous at all real numbers। Now next question, यहाँ पर देखिए ये भी एक क्या है, कंटिन्यू, ये जो है
दो फंक्शन है, देखिए यहाँ पर भी एक g of x is equal to x and h of x is equal to cos x, right? G of x is equal to x and h of x is equal to mod x. सॉरी, ये इसको ये लेंगे हम cos x, तो g ओ h is equal to क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लेंगे mod x लेंगे, g of x is equal to mod x लेंगे, तो therefore g o h is g of h of x that is equal to x के बदले में क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे, mod of cos x, राइट। तो हम लोगों को यहाँ फिर से देखना है, देखिए कि g of x फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करना है, g of x is equal to mod x, मॉड एक्स बोले तो कैसा होता है, देखिए दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स और एक प्लस एक्स, दिस इज फॉर लेस देन जीरो और एक ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के लिए कंटिन्यूटी, राइट। सो लेट अस चेक हियर f of 0 is equal to g of 0, g of 0 is equal to x की x है, g of x पर लेते हैं, x लेंगे, तो g of 0 is equal to क्या हो जाएगा, राइट। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, LHL is equal to what, limit h tends to 0 minus h, so limit h tends to 0 minus 0 minus h, तो ये आ जाएगा माइनस 0 माइनस 0, तो ये 0 आ गया, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ ये g ऑफ ना, g फंक्शन है इंस्टेड ऑफ f बिल्ट इन g लेना, तो ये g ऑफ 0 प्लस h, दिस इज इक्वल टू ये आएगा, देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए, so limit h tends to 0, 0 plus h आना आएगा यहाँ, right? So again this is 0 plus 0, ये 0 आएगा, तो RHL 0 आ गया, LHL 0 आ गया, और ये g of 0 is 0, so g of 0 is equal to LHL is equal to RHL, so okay. So this implies G is continuous at all points, you can say, right? Now next function क्या हो रहा है, bold में लिखो, okay, no problem. Now see here, दिख रहा है तो बताना मुझे, h of x is equal to cos x, दिख रहा है क्या अभी, is it clear, क्लियर है, दिख रहा है, okay, right. तो हम लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका डोमेन जो है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू रियल नंबर, तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, लेट k is belonging to R, k is any real, so h of k is equal to cos k आएगा, बराबर। उसके बाद में लेट अस कैलकुलेट लिमिट x टेंड्स टू k, निकालेंगे डायरेक्ट हम लोग cos of x, दिस इज इक्वल टू cos k, राइट।
देखिए h of x is equal to limit h x tends to k f of cos x. So this implies h is वो h और ये चेक कर रहे हैं ना हम लोग h is continuous at k. Now see here g function g of x and h of x are continuous. Therefore, g of h is equal to mod of cos x is continuous at all k belonging real numbers बोल सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर again sin x फंक्शन है. ओके बच्चों, मुझे लगता है यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस. देखिए यहाँ पर भी मॉड फंक्शन है तो इसको ये कंटिन्यूस अलग से बताना है. देखिए हम लोगों ने देखा है एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, एफ माइनस जी कंटिन्यूस होगा. इसकी कंटिन्यूटी अलग बताइए, इसकी कंटिन्यूटी अलग बताइए.